Assalamualaikum dear students, welcome back to the online mode of learning. So students, we were discussing chapter number 5, that is related to the auditing planning. So we discussed audit planning, we discussed the starting of a new audit, or we can say the commencement of new audit, and we discussed various points in this. Then we discussed audit procedures, and after that we discussed the characteristics of audit procedures. And in the characteristics of audit procedures we discussed various points. Now moving forward to the characteristics of audit procedures, we are going to basically discuss the two kinds of audit procedure. So first one is the system audit procedure, and the second one is the vouching audit procedure. So in my previous lecture I already differentiate between an audit procedure, system audit procedure, and vouching audit procedure. So let me first make the differentiation between system audit procedure and the vouching audit procedure. So basically in system audit procedure, the auditor can follow system audit plan in a large scale business concerns where internal control system is properly working. So इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा सिस्टम ऑडिट प्लान होता है इसको अप्लाई किया जाता है या फॉलो किया जाता है किन ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जिसमें जो इंटरनल कंट्रोल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है. सो बेसिकली हमारा ऑडिटर जो है he should apply different tests to see that the internal control system is effective and it is working throughout the year. So this is basically the system audit procedure. Now moving to the vouching audit procedure. जो vouching audit procedure होता है वो क्या होता है? Basically in this, auditor can follow vouching audit when the size of the business is small and when there are few employees and the internal control system we can say is hard to reduce. So इसका मतलब ये है कि ये जो होता है वाउचिंग ऑडिट प्रोसीजर, ये किन बिजनेस में रन कर रहा होता है या फॉलो किया जाता है जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कम होते हैं और हमारा बिजनेस जो होता है वो स्मॉल होता है. सो coming back to the system audit procedure, there are some points of system audit procedure. So the first point is negotiate with the client. So basically an auditor should negotiate with the client and he can discuss the details of audit work to be done, and basically the date, the audit fee and details of audit work are decided in this. ठीक है, तो हमारा जो ऑडिटर होता है वो क्या कर रहा होता है, नेगोशिएट कर रहा होता है और वो सारी डिटेल्स जो होती हैं वो डिस्कस कर रहा होता है कि कौन कौन सा ऑडिट का वर्क जो है उसने करना है. ठीक है, उसमें आपकी डेट्स जो होती हैं, आपकी ऑडिट फी क्या है जी, इस तरह की डिटेल्स जो होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं. द सेकेंड पॉइंट इज़ द ओल्ड ऑडिटर. सो बेसिकली द ऑडिटर कैन कंसल्ट विद द ओल्ड ऑडिटर about the clients, and the old auditor can give his consent with when all dues are clear, and the new auditor can give willingness to start the audit. ठीक है, जब हमारा जो ओल्ड ऑडिटर होता है उसके सारे ड्यूज क्लियर हो जाती हैं, कंसेंट मिल जाता है जी दूसरे न्यू ऑडिटर को और उसकी विलिंगनेस हो जाती है, तो फिर वो अपना क्या कहते हैं जी, अपना ऑडिट स्टार्ट करते हैं. देन वी हैव द इंगेजमेंट लेटर. इसमें इंगेजमेंट लेटर का एक पॉइंट है. Basically the engagement letter is given to the client documents and he confirm the acceptance of the appointment of the auditor. ठीक है, तो ये जो लेटर होता है ये हम दे रहे होते हैं, जो क्लाइंट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंफर्म कर रहे होते हैं जी कि जो नया ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है. सो इट शोज़ the objective and scope of the audit basically, and हम कहते हैं कि जी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा स्कोप क्या है ऑडिट का, क्यों हम कर रहे हैं ऑडिट, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, या हमारी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये सारी जो है वो इंगेजमेंट्स के बारे में बताया जाता है.
Next is the elementary investigation. So basically elementary investigation is the process of evaluating the likely effectiveness of an entity's accounting system and internal control. ठीक है, इसमें ये होता है कि एलिमेंट्री इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हमारा एक प्रोसेस है कि हम किस तरह से एवेल्यूएट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम को कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो उसमें हमारी जो एलिमेंट्री इन्वेस्टिगेशन होती है ये जो होती है ये एक हमारा प्रोसेस होता है और बेसिकली ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर ये देख रहा होता है कि किसी किस्म की मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं हो रही हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ द रिकॉर्ड सिस्टम। सो बेसिकली रिकॉर्ड सिस्टम क्या होती है, ये हमारे जो मेथड्स होते हैं, ये रिकॉर्ड्स होते हैं, ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं किस तरह से हम जो है अपने रिकॉर्ड्स को समराइज़ कर रहे हैं, प्रोसेसेस क्या है, रिपोर्ट क्या है किसी भी एंटिटी की ट्रांजैक्शंस की, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारी मेंटेन हो रही है रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसमें हमारा ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ दी टू एवेल्यूएट द सिस्टम। So basically the auditor should identify and analyze the relevant issues, what kind of issues, including the performing further procedures as necessary to come to the specific conclusions on a matter. So basically ये जो system है इसको evaluate इसलिए कर रहे होते हैं कि हम उसके relevant issues देखें, procedures क्या हैं, ठीक है, ताकि वो conclusions पे पहुंच सकें। नेक्स्ट इज़ दी कंप्लाइंस टेस्ट। जब हम कंप्लाइंस की बात करते हैं तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंप्लाइंस टेस्ट क्या होता है, बेसिकली द ऑडिटर शुड अप्लाई कंप्लाइंस टेस्ट टू चेक दैट एन इंटरनल कंट्रोल इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम ये कहेंगे, ठीक है। सो basically in obtaining audit evidence, auditor is concerned with existence of internal control, also the effectivity of the internal control and the continuity of the internal control. So basically क्या हो रहा होता है, हमारा ऑडिटर ये देख रहा होता है, ऑडिट एविडेंस को जी गैदर कर रहा होता है, वो देखता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, इफेक्टिवनेस क्या है, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो कंटिन्यूटी है वो हो रही है, कंटिन्यू है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट लेटर। सो बेसिकली ये जो लेटर होता है ये क्या होता है, basically the auditor should write letter to the management to obtain evidence that management acknowledges its responsibility, ठीक है। इसमें ये होता है, हम ये कहेंगे कि हमारा जो ऑडिटर होता है वो मैनेजमेंट को लेटर लिख रहा है और वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उसके रिप्रेजेंटेशन को या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग ऑल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट है वो प्रूव कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसका जो ऑडिटर है वो बेसिकली लेटर राइट कर रहा होता है मैनेजमेंट को टू ऑब्टेन सच एविडेंसेस। नेक्स्ट इज द टू एग्जामिन द ट्रायल बैलेंस। ये हमने इस तरह का ट्रायल बैलेंस से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। बेसिकली जो ऑडिटर होता है ही कैन चेक द आइटम्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। वो चेक कर रहा होता है कि जो आइटम्स है ट्रायल बैलेंस में वो उनकी जो चेकिंग होती है उसको हम ये कहते हैं कि एग्जामिन द ट्रायल बैलेंस। सो बेसिकली वो इंश्योर क्या कर रहा है कि जो आइटम्स है जो जर्नल में है या फिर लेजर्स में होते हैं वो क्या मैच कर रहे हैं, और वही सारे के सारे जो अपीयर किए गए हैं ट्रायल बैलेंस में क्या वो जर्नल में भी हैं और वो अलग से लेजर्स में भी है। सो इट मीन्स कि जो हमारी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आर दे विद द कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द ट्रायल बैलेंस। सो बेसिकली क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हार्मनी है या नहीं है, हमने ये देखना है कि इधर उसमें जितने ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम्स हैं उतने ही हमारे जर्नल लेजर में है या नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो आपने जर्नल लेजर है या फिर आई कैन से द ट्रायल बैलेंस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अकाउंट्स, सो आई do not need to further explain it. So I guess you all know about the trial balance, about the journal and about the ledgers.
if you don't know about ledgers, trial balance and journal, so you can ask me question when you get this lecture. Okay, so next is to examine the adjustments. Now what are adjustments? uh, Basically, when we talk about to examine the adjustments, uh, basically the auditor should examine adjustments related to the outstanding expenses, we can say our prepaid expenses, or we can say the depreciation, or we can say the unearned income. So इस तरह की जो हमारी एडजस्टमेंट्स में की गई होती हैं इन सारे अकाउंट्स में, तो उसकी उसकी एग्जामिनेशन को हम कहते हैं जी, इसको हम कहेंगे कि हमारा ये एग्जामिन किया जा रहा है एडजस्टमेंट्स को, और ऑडिटर जो होता है वो ये सब कुछ कर रहा होता है. सो बेसिकली ऑडिटर कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स टू इंश्योर द फिगर्स आर फैक्ट्स. ठीक है, तो इसीलिए जो है अमाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स को चेक किया जाता है कि हमारा जो ऑडिटर है वो ये देखे कि हमारी जो अमाउंट्स है वो फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं हमारी फैक्ट्स पे हैं या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज टू रिव्यू द रेवेन्यू अकाउंट्स. ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने एडजस्टमेंट्स को जो है वो रिव्यू किया, इस तरह से हम रेवेन्यू अकाउंट्स को भी करते हैं. हमें पता है हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स कौन से होते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस इन अकाउंट्स और फाइनेंस. ठीक है, तो बेसिकली द ऑडिटर शुड रिव्यू रेवेन्यू आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से of an entity. So the review of revenue accounts relates to the checking the usefulness of revenue accounts prepared by the management. So इसमें ये होता क्या है, बेसिकली इसमें ये हो रहा होता है कि हमारे जो रेवेन्यू अकाउंट्स होती हैं उसकी यूजफुलनेस हमने चेक करनी है, और ये किसने बनाई होती है, हमारी जो मैनेजमेंट होती है उससे प्रिपेयर किए हुए होते हैं. तो हमारे अकाउंटेंट का क्या काम है या हमारे ऑडिटर का क्या काम है? हमारे ऑडिटर का ये काम है कि वो किस तरह से इसी तरह से जो है वो रिव्यू कर रहा है हमारे रेवेन्यू अकाउंट्स को. ठीक है, तो या उसकी यूजफुलनेस को चेक कर रहा है. तो ये जो है ये हमारा हो गया रिव्यू रेवेन्यू अकाउंट्स. देन वी रिव्यू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाता है? वी नोट दैट बैलेंस शीट में आ जाता है हमारा एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी. ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमारा ऑडिटर होता है वो आइटम्स चेक कर रहा होता है related to the assets, related to the liabilities that is appearing in the balance sheet of an entity. So the auditor can determine the quality of work performed related to the balance sheet and conclusions reached by the management. जो हमारी मैनेजमेंट ने कंक्लूजन्स बनाए हैं उसकी चेकिंग जो है या उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को जो जब चेक कर रहा होता है ऑडिटर, तो उसको हम कहते हैं टू रिव्यू द बैलेंस शीट. नेक्स्ट इज टू कंफर्म to legal requirements. When we talk about legal requirements, so the auditor can check that the prescribed laws have been followed in preparation of financial statement or not. ठीक हो गया. So हम देखते हैं कि हमारा there are a lot of laws that govern the working of the business. The books of accounts must conform to the legal requirements in this. The auditor can check the prescribed laws and regulations or rules that have been followed in preparation of financial statement. So basically our auditor checks all these laws, all these financial statements are made under such laws and regulations. Next is to discussion with the director. So basically auditor can discuss important matters with the management and the weak points can be explained and management representations may be received. So in this management representation is also very necessary. Auditor discuss basically the all important matters with the management first. Then we have the how to prepare audit reports. So basically the auditor prepares report on business matters for the submissions to the shareholders and owners. So basically हमारा जो ऑडिटर होता है वो ये सब कुछ कर क्यों रहा होता है? वो इसलिए कर रहा होता है कि हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हमारे शेयर होल्डर्स और हमारे ऑनर्स तक पहुंचाई जाए, एंड द रिपोर्ट में बी we can say qualified under the circumstances, or we can say it can be disqualified, unqualified too. So when a qualified
report is presented, so the opinion is given and the report must state all reasons for such opinion. That was all about the system procedure, audit procedure. And now moving forward to the vouching audit procedure. Now what is vouching audit procedure? Basically I already told you that the vouching audit procedure is used when the size of the business is small and when there are very few employees and when the internal control system is not possible to introduce. So the first point is again negotiation with the client. जिस तरह से पहले हमने सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर में पढ़ा था वैसे ही हम इसमें भी जो है वो नेगोशिएट करते हैं क्लाइंट्स के साथ। इसी तरीके से प्रीवियस ऑडिटर जो है उसे कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, उसका कंसेंट लिया जाता है, डी उसको क्लियर किया जाता है और उसका विलिंगनेस जो होता है स्टार्ट किया जाता है। देन एंगेजमेंट लेटर आ जाता है। एंगेजमेंट लेटर भी वही है जी कि हमारा जो क्लाइंट का डॉक्यूमेंट है या उसकी कंफर्म करे एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, एक लेटर लिखा जाता है मैनेजमेंट को और वही शो कर रहा होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्कोप क्या है हमारा ऑडिट का, क्यों किया जा रहा है ये ऑडिट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी जी हमारे ऑडिटर की और क्लाइंट्स का क्या जो है वो रोल है। देन एलिमेंट्री इन्वेस्टिगेशन भी वही है कि एलिमेंट्री इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इज दी प्रोसेस के हम इफेक्टिवनेस किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम की जो है वो चेक किए जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक किया जाता है और उसके इंटरनल कंट्रोल को देखा जाता है, ठीक है। देन रिकॉर्ड सिस्टम भी हमारा वही है। बेसिकली the auditor should examine the record system and the methods and records established to the record, summarize किस तरह कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है, एंट्री की ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कैसे किया जा रहा है, किसकी अकाउंटेबिलिटी को, हमारे एसेट्स की, हमारे लायबिलिटीज़ की। देन हम बात करते हैं एनालिसिस एंड द अकाउंट्स टेस्ट। Basically, the auditor should apply audit test to check the accuracy, completeness and validity of the accounts, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो किया जाता है और हमारे अकाउंट्स की टेस्ट की वैलिडिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे अकाउंट्स होते हैं इनके एनालिसिस इसलिए किए जा रहे होते हैं कि रेशोज़ देखें या ट्रेंड्स देखें कि कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं हैपन हुई इन द अकाउंट्स, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा एनालिसिस किया जा रहा होता है और अकाउंट का टेस्ट किया जा रहा होता है। फिर हम बात करते हैं जी मैनेजमेंट लेटर की। मैनेजमेंट लेटर क्या होता है? बेसिकली जो मैनेजमेंट लेटर है इज़ द लेटर एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वी कैन से ऑडिट कमेटीज़ को जो लेटर जो है वो एड्रेस किया जाता है उसको हम कहते हैं जी मैनेजमेंट लेटर। और ये किसी भी ऑफिशियल को लिखा जा रहा होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये लिखा जा रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के बारे में उसकी किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये कंट्रोल्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, ये सारा जो होता है लेटर इसलिए लिखा जा रहा होता है। फिर हम बात करते हैं जी टू एग्जामिन द ट्रायल बैलेंस। अगेन मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमारा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमारे वही जर्नल लेजर्स में जो होता है उसको बेसिकली जो है वो चेक किया जा रहा होता है कि हमारे उतने ही आइटम्स जर्नल लेजर में है जितने हमारे ट्रायल बैलेंस में है या उनके दरमियान हार्मनी है बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द ट्रायल बैलेंस, ठीक हो गया। देन वी से दैट टू एग्जामिन द एडजस्टमेंट्स। अगेन वही बात आ जाती है इसमें भी कि हमारी जो ऑडिटर है वो हमारे एग्जामिन करता है जी एडजस्टमेंट्स को रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वी कैन से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं या हमारी किसी किस्म की अर्नड इनकम जो है, डेप्रिसिएशन जो होती है वो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेट कर रहा है जो एडजस्टमेंट्स और देखते हैं कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो डिसमेंटल तो नहीं है, सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो फिगर्स हैं वो फैक्ट्स पे बेस करती हैं या नहीं करती हैं। फिर हम उसी तरीके से रिव्यू करते हैं जी रेवेन्यू अकाउंट्स को, ठीक हो गया। बेसिकली द ऑडिटर शुड we can say check the quality of the work performed relating to the revenue accounts and then conclusions are made and conclusions are reached by the management too, ठीक हो गया। फिर उसी तरीके से हम बैलेंस शीट की बात करते हैं।
ठीक है। बैलेंस शीट में भी अगेन मैं आपको बता दूं कि हम क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक कर रहे हैं बैलेंस शीट की, और कंक्लूजन्स जो मैनेजमेंट ने बनाए थे उसको चेक कर रहे हैं हम इसमें। देन वी डिस्कस इट विद द डायरेक्टर, सो द ऑडिटर कैन डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स विद द डायरेक्टर और द मैनेजर इन दिस, एंड वी कैन से द वीक पॉइंट्स कैन बी एक्सप्लेन एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में बी रिसीव्ड ऑल्सो। ठीक हो गया। देन वी टॉक अबाउट द लेटर रिप्रेजेंटेशन, basically representations made by the management to the auditor during the course of an audit। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारी होती है, ये हमारी लेटर की रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी इंक्वायरी की बेसिस पे जब हम लेटर को जो है वो जो कि मैनेजमेंट लिख रहा है ऑडिटर को, तो उसको हम कहते हैं, या रिप्रेजेंटेशन मेक कर रहा है, उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट इज दी टू प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट। अगेन ऑडिट रिपोर्ट हमारी जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है किसी भी बिजनेस मैटर को लेके, कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं ऑनर्स के लिए ये जो है वो लिखी जा रही होती है, और ये लोग जो है उसकी सबमिशन कर रहे होते हैं। सो द रिपोर्ट में बी we can say qualified, or it can be unqualified under the circumstances, and when it is qualified, so the adverse or disclaimer of opinion is given in this, and the report must state all the reasons for such opinion। so basically ये opinions की basis पर जो होती है वो जो है वो वर्क कर रही होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर, and then we discuss the vouching audit procedure. In the next lecture we will be discussing about the audit program. Basically this is the procedure, this is the main procedure, and we will be discussing about the definitions. First I would like to tell you कि audit program होता क्या है। I am just giving you a flavor of audit program, so we can discuss it in the next lecture. So basically audit program की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि audit program is an outline of all the procedures to be followed in order to arrive at an opinion concerning a client's work financial statements। ठीक है, तो हम जब ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो सारे प्रोसीजर्स जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, वो आउटलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अराइव एट एन ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन पे हम अराइव करें वो किसी भी क्लाइंट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके। सो ये जो है ये हमारा कहलाता है ऑडिट प्रोग्राम। सो वी फर्दर आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स एंड सम कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑल्सो वी आर गोइंग टू discuss the advantages of audit program, and then we will be discussing about the disadvantages of audit program. So this all we are going to discuss in the next lecture. Today I guess that is enough. Also I am saying you people again and again to be conscious about your assignments. I haven't received a single assignment from you people as yet, and at the end of the semester please don't come to me and say me that you have submitted your assignments, because I know that I haven't got a single assignment from you people as yet. So definitely I am going to deduct your sectionals from this. So I guess that is my last call for assignment. I won't be asking for your assignments from now on. So that is all for today. Thank you so much.